Next, we have a delightful performance by our class second children on Ek Soch Hai Jagi. Through this performance, they will beautifully bring to life the importance and necessity of embracing nature's balance. Let's watch as they inspire us with their message of harmony with nature. Kering
गुजरने का फितूर जब चढ़ा, एक सोच जागी जागी धरती के लिए, एक जोत जागी जागी प्रकृति के लिए। That was a lovely performance. Our little ones have shown us the importance of nature's balance. Absolutely. They have reminded us of the importance of preserving our precious nature. Absolutely, Navya. What's up? What's up, bro? All well? Kahe ka well, yaar? This homework thing is getting on my nerves. Oh, bro, don't remind me of that. Our teachers are like, you are the next Einstein, Aryabhatta, Wordsworth, and what else? Bro, इतना versatile तो रेस्टोरेंट का मेन्यू भी नहीं होता ना टीचर्स हमें समझ रहे हैं. We do have a life, yaar. They need to understand. Yes, we will stand for our rights. Yes, bro, you are right. And we aren't doing anything wrong. A class teacher taught us freedom of expression under Article 19. Yeah, right. How can I forget that? Deal them then. No homework tomorrow. Of course, bro. See the deal. Oh, I forgot to mention that teachers can't even punish us. Yeah, under Section 17 of RTE Act, corporal punishment is prohibited. ना. मजे यार. मजे आ गए यार. कोई टेंशन नहीं. No homework, no tension. अरे बेटा, क्या हुआ? दादी, we are free from homework. वो कैसे? दादी, बच्चों को पीटना is against the law. तो अगर होमवर्क नहीं भी करेंगे तो टीचर्स क्या ही कर लेंगे? Very bad, beta. Teachers are next to God. They are the guiding lights of our lives. Don't you know about Eklavya, who became a great archer just by simply showing a deep devotion and respect to his Guru's statue? And don't you forget that India has a great legacy of Guru and Shishya Parampara, where Gurus are devoted as river divines. So you must always respect your teachers. Okay, दादी. Thank you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Let's celebrate the never Guru Shishya Parampara, a bond that has shaped our traditions. Now let's bring the story of Eklavya and Dronacharya to life through a powerful performance. Eklavya was the son of the tribal chief in the forest of Hastinapur kingdom. He was brave and handsome boy but loved by all. Eklavya, why are you so unhappy? You just flew away from your friends. Are you not interested in hunting? Father, I want to be a great archer. I want to become a disciple of Dronacharya. Dronacharya, the great archery teacher in Hastinapur. Yes, Father. But his Gurukul is only for royals. He teaches prince and Kshatriya warriors. We are from a humble background, and such privilege is not granted to us, my dear Eklavya. I know, Father. We are Shudra. But I want to become a warrior, not just a hunter, Father. Please allow me. Son, you are dreaming something impossible. Anyways, my blessings are always with you. You can go, my son. Eklavya reached the Gurukul, where Dronacharya taught the princes of Hastinapur. वक्रतुंड महा
my son? Gurudev, I'm Eklavya, the son of the tribal chief. Please accept me as your disciple. I want to be a great archer. Eklavya, a Shudra boy cannot become my disciple. He is a royal teacher appointed by the king to train the prince in a high field. How dare you to come inside? Leave now. Do you want me to leave, Gurudev? Yes. It's not fair. God has given knowledge to all of us. Why this condition? Maybe I'm Shudra, but I'm strong and genius as grown princes. I will practice the art of archery and I will surely become a great archer. Eklavya made a statue of Dronacharya. Pranam Gurudev, bless me Gurudev. I will certainly become a great archer. For years, he worshipped the statue of Dronacharya and practiced archery. His faith and courage transformed Eklavya from an ordinary hunter to an extraordinary archer. Today I shall teach you the art of hunting. Let's go to the forest. Guru Drona trained the Pandavas and the Kauravas in his Gurukul by making them masters of all the art of warfare. On the other hand, Eklavya, a young prince of Nishada tribe, who wished to learn archery from Guru Drona, watched him teach secretly. Dear students, remember to keep your bow on steady, focus your mind on the target, and to release the arrow with a calm mind. Precision is the key to becoming a great archer. Now it's time to rest. Seven must go and bring fruits and water from the forest for all. I will bring water, Gurudev. I will bring fruits, Gurudev. Lightning cannot shoot with an arrow. He must be a human. Who has killed this monster? Show yourself to us. Now,
something? You deceived me, Gurudev. You deceived me. So, you become my disciple without my permission. Where is my Guru Dakshina? You must give me Guru Dakshina for your training. Gurudev, I will be the happiest person in the world to serve you. Ask anything. It's my pride to offer you Guru Dakshina. Think about it again. I may ask for something that you won't like to give. What if you refuse? Gurudev, I'm not that ungrateful. I will never refuse anything you ask, Gurudev. Okay, Eklavya, give me your right hand thumb as Guru Dakshina. I know, Gurudev, I will never be a good archer without my thumb. But your wish is my command. Without any hesitation, Eklavya took out his knife and cut his right hand thumb. Here is your Guru Dakshina, Gurudev. I'm proud that you have let me a disciple even though I'm Shudra. Eklavya, you conquered me with your courage. Though you are not a thumb, you will still be remembered as a great archer. I bless you that you will be remembered further for your loyalty to your Guru. Drona felt contented that his promise to Arjun was not broken. And due to Drona's blessing, Eklavya is still blessed as the most loyal and brave student in the epic of Mahabharata. Gurura Brahma, Gurura Vishnu, Gurura Devo Maheshwara, Gurura Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. What an amazing performance! Look, Meera, my superhero Iron Man can fly and shoot lasers. Who's your superhero? Captain America, obviously. He's super strong and has an unbreakable shield. Oh, please, a flying king is way more cooler than a guy carrying frisbee. It's not a frisbee, and he's brave and patriotic. He'll do anything for his country. So what? Even Iron Man saves the world. Sometimes. Arey, what's all this noise about superheroes? Dadu, we are arguing about who the better superhero is, Iron Man or Captain America. Beta, these are fictional superheroes. Let me tell you about the real superheroes of our nation. Real superheroes? You feel like Bollywood actors. No, beta, I'm talking about our brave soldiers and freedom fighters. Let's take Major Vikram Batra for an example. He was as fearless as Iron Man and had a catchphrase to "Ye dil mange more" and sacrificed his life by saving our borders during the Kargil War. Wow, that's amazing. Yes, it is. And don't forget about Captain Manoj Kumar Pandey, who had the courage of 10 Captain Americas and said, "If death strikes me before I prove my blood, I swear I will give death." That's so cool, Dadu. Who else? Don't forget about Rani Lakshmibai, the Queen of Jhansi, who fought with the Britishers while holding a sword in her hand and her child in the other, or Shaheed Bhagat Singh, who sacrificed his life at just 23. So they are like Avengers, but real. Exactly. They didn't have superpowers, but their love for the nation made them invincible. I am going to dress up as Major Vikram Batra for the school play. And I'll be Rani Lakshmibai. That's the spirit. Remember, kids, real superheroes aren't the one in costumes. They're the one who teach us to be better. Jai Hind.
मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बता, क्या मेरी माँ का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उठाना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश भी जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले दो, पर ये बात भी जहन में डाल दे दो कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरी माँ के कर्ज भी। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखेगा और तब तक रखे जब तक आसमान में चलता है, तो क्या वो उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेगा, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देगा। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू बरता नहीं थी। एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर कर। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर पेशेवर बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो।
चारों भाइयों का विवाह संपन्न होने के बाद अब राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। प्रजा उनको चाहती थी, सब उनके पराक्रम का लोहा मानते थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, हे मुनिवर, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा मुझसे बन पड़ा। मैं वृद्ध हो चला हूँ, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह राजपाट राम को सौंप दूं। राजन, मुझे तो लगता है कि यह अच्छा विचार है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर आप सब सहमत हो तो क्या राम को युवराज बना दिया जाए? हाँ, हम सब सहमत हैं। श्री राम की, श्री राम की। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्य कल सुबह कर दिया जाए। जैसे आपकी इच्छा राजन। महाराज की जय हो। मंत्री, जाओ जाकर युवराज राम को बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना के कैलाश के यहाँ गए हुए थे। प्रणाम पिताश्री। राम, भरत शत्रुघ्न नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। जी पिताश्री, पर पिताश्री, यदि अगर भरत और शत्रुघ्न भी होते तो बेहतर होता। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राज धर्म का पालन करना, रघुकुल की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। जैसी आपकी इच्छा, मैं राज धर्म का पालन करूंगा। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। ऐसी सजावट देखकर उसने कौशल्या की दासी से पूछा, अरे बहन, क्या बात है? इतनी सजावट क्यों है? क्या आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। कल श्री राम राजा बनने जा रहे हैं। राम और राजा? मंत्रा जल भूल गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। आओ मंत्रा। अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपदा का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? कैसा कुशल और कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मत्ती मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। चुप रहो मंत्रा। राम के पति मेरा वात्सल्य है। वह मुझे मां के समान मानता है। तुम्हें इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। भरत राजा बनेगा? राम के बाद राजा भरत नहीं,
दशरथ ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। महाराजा दशरथ से अपने वचन पूरे करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। ककेई ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास। श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण वनवास जाने से पहले माता कौशल्या की आज्ञा लेने आते हैं। प्रणाम माते। जीते रहो। आज मैंने भगवान विष्णु का व्रत किया है। आओ मैं तुम्हें भगवान के चरणों का तिलक लगा दूं। बैठो पुत्र, मैं भगवान का पति हूं। बैठो पुत्र, बैठते क्यों नहीं? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए उचित नहीं। अच्छा, राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ के आसन पर नहीं बैठेगा। माँ, अब मैं महाराज की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज राज सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर लेता है? यह हंसी नहीं माते, अटल सत्य है। मैं वन जा ही रहा हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये असत्य है, असत्य। धीरज रखो माँ। धीरज? कैसे रखूं धीरज? माँ, मुझे वन जाना ही होगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे आगे के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, मेरी जननी, मेरी माते, क्या अयोध्या की महारानी कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई? ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ बन जाऊंगी मेरे लाल। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। पहले सुहाग, फिर संतान, यही आर्य नारी का कर्तव्य है। ये कहकर तुमने माँ के प्राण मांग लिए पुत्र। जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रहूंगी। माँ, मैं भी आपसे आज्ञा मांगने आई हूँ। आज्ञा? किस लिए? मैं भी अपने आने के साथ बन जाऊंगी। सीता, क्या तुम बन जाओगी? हाँ माते, मैं बन जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। बन जाने का अर्थ जानती हो सीता? तुम्हें अनुमान नहीं है कि वन का जीवन कितना कठिन है। तुम कैसे रहोगी? जैसे आप कहेंगे प्रभु। भैया, क्या ये सत्य है कि ककेई के कहने पर महाराज ने आपसे आपका राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता को नाम सुखलाना कब से शुरू कर दिया? क्या तुम सूर्यवंश की मर्यादा भूल चुके हो? क्षमा चाहता हूँ भैया, पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक लक्ष्मण के प्राण बाकी है, मैं आपके साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। कैसा अन्याय? पिताजी के वचन का पालन करना मेरा धर्म है। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। लक्ष्मण आपसे अलग? आप कब से लक्ष्मण को अपने से अलग मानने लगे? ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्री रामचंद्र पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। उनके वियोग में महाराजा दशरथ का निधन हो जाता है। जी मुनिवर। जो आज्ञा मुनिवर। प्रणाम गुरुदेव। वत्स भरत, अयोध्या का सिंहासन खाली है। खाली सिंहासन देखकर शत्रुओं का खतरा बढ़ गया है। वत्स भरत, तुम राजकाज संभाल लो। पिता की मृत्यु और बड़े भाई के वन गमन के बाद मुनिवर, तेरा जो भैया राम का है वही इसके अधिकारी है। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और उन्हें वापस लाएंगे। भरत शत्रुघ्न राजमाता सहित गुरु और सभी मंत्रियों के साथ वन के लिए प्रस्थान किया।
लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। भैया, भैया! क्या हुआ लक्ष्मण? सब कुशल तो है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया भरत इधर सेना के साथ आ रहे हैं। लगता है वैसे मार डालना चाहते हैं ताकि ये क्षेत्र राज कर सके। घबराओ मत, भरत कभी ऐसा नहीं करेगा। वह हमसे भेंट करने ही आ रहा होगा। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या चाहते हो? दो भाइयों के मिलने में सेना का क्या काम? वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भरत कभी ऐसा नहीं करेगा। वह हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। भैया, भैया! कैसे हो भरत और कैसी है हमारी अयोध्या? भैया, अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? एक दुखद समाचार है। पिता दशरथ नहीं रहे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? भैया, कृपा आप अयोध्या लौट चलो। आपके बिना अयोध्या अधूरी है। नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी में कुल काम। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीत न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। नहीं भैया, अगर आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत भी अयोध्या नहीं लौटेगा। मेरे भाई, आज राम तेरे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तू मुझे देने आया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम राजपाट संभालो। 14 वर्ष बाद लौटकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। जैसी आज्ञा भैया। कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूं। बोल, क्या चाहिए? आप अपनी चरण पादुकाएं दे दो। मैं 14 वर्ष तक इनकी सेवा से राज्य चलाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। इस तरह राजा दशरथ के वचनों का पालन श्री राम ने किया और श्री राम की आज्ञा का पालन भरत ने किया। जय श्री राम। vehicle door is open. Please connect the
चुनरी गई सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 It beautifully captured a sense of divine love and faith. Absolutely. It's a perfect tribute to the eternal legacy of devotion. Let's carry the spirit of love and connection with us always. Rahul, what are you even talking about? I mean, you're just swallowing. It's a disaster. What kind of friend loses a whole and like samosas for the group? It's not my fault. The samosas were so hot, I couldn't focus. Yes, because samosas are known to cause the colic amnesia. This is why I always say true friends should never trust clumsy friend with money. Rahul, you didn't even pay for the samosas. It was my money. Guys, stop. Let's retrace the steps. Where were we last? We were at samosa stall, at chai stall. Wait. Never mind, it's good. Aman, how could you do this to me? I was emotionally invested in this. Rahul, calm down. It's just a wallet, not a Bollywood movie plot. See, that's the kind of friend I am. I make life interesting. True, and that's why we put up with you. Because life would be boring without your disaster. You know, this reminds me of Krishna and Sudama. Sudama didn't have money, wealth, or any fancy gift to give. But Krishna didn't care. True friends never judge you on your status. They love the bond you share. Exactly, and that's why you guys don't judge me for being a little bit, clumsy. A bit is an understatement. But yes, we love you anyway. Because at the end of the day, it doesn't matter what happens. Hot samosas, missing wallets, or our dramatic friends. We have got each other's backs. Now let's celebrate my phone wallet with more samosas.
कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनमा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। अरे वो तो राजा है, राजा राजमहल में रहते हैं। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है, हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार, हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सलीम भाई, द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो ये है कि वो परम दरिद्र दिखता है, ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका
मित्र है, हमारा परम मित्र। कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही गाँव। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उफान की नहीं सामा। द्वार खड़ा दुज दुर्बल रया चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ा दुज दुर्बल रया चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, नाम सुदामा का सुनते ही ब्रज आसन खाए चारु पिया। कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर न खोला। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत चकोरा। मित्र से मित्र को मित्र चले जू, आवत में चांद की ओर चकोरा। कौतूहल भरे ये दृश्य सब दिख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण द्वार कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे कि भगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौटा द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर है? लो, वो भी आ गया।
सुदामा,
लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहाँ से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा है। आओ मित्र। मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारकाधीश नहीं है, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य है। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो यह है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे। What a heartwarming performance! It beautifully portrayed the value of friendship, love, and loyalty triumph over material wealth. Yes, very true. Just like the bond between Krishna and Sudama, we witnessed today that true friendship is priceless and enduring, no matter the circumstances. सभ्यता और संस्कृति की खान यहाँ, सभ्यता और संस्कृति की खान यहाँ, माता पिता गुरु अतिथि है भगवान यहाँ। संस्कारों और परंपराओं से होती पहचान यहाँ, संस्कारों और परंपराओं से होती पहचान यहाँ, हर धर्म का मान सम्मान यहाँ। संगीत कला का मनोरम दृश्य यहाँ, बहती नदियों की पावन धार यहाँ। संगीत कला का मनोरम दृश्य यहाँ, बहती नदियों की पावन धार यहाँ। तपस्थली ऋषि मुनियों की अध्यात्म का आधार यहाँ। है गर्व हमें इस धरोहर पर, है गर्व हमें इस धरोहर पर, गीता और गुरु ग्रंथ का सार यहाँ। कलमकारों की भूमि साहित्य का प्रवाह यहाँ, कलमकारों की भूमि साहित्य का प्रवाह यहाँ। हरी भरी लहराती फसलें, माटी की सौंधी महक यहाँ। है गर्व हमें अपने वीरों पर, है गर्व हमें अपने वीरों पर, जनगण मन का गान यहाँ, विविधता का संगम यहाँ। यह मिट्टी वैभवशाली है, यह धरोहर वैभवशाली है, यह धरोहर वैभवशाली है। वसुधैव कुटुंबकम आधार है जिसका, अतिथि देवो भव मूल संस्कार है जिसका। गौरवान्वित है हम भारतीय उसी संस्कृति से, पूरे विश्व में आज विस्तार है जिसका, पूरे विश्व में आज विस्तार है जिसका। So all my khand mithe Dogre, kya latunda? From the lively beats of the north, we have Dogri dance. Dear Bengalis, ke mochi so bai. From the east, we have Bengali dance. Ane mara Gujarati bhai, Vedhi, keem cho? Majama. The energetic rhythms of the west, we have Gujarati dance. And to all my South Indian friends, Pai Vadakkam. From the south, we have Tamilian dance. Join us as we take you on this beautiful journey celebrating the heritage of India's cultural diversity. Thank you.
शरणनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादवन्दितम् ಕಿಚ್ಚಿಗಣನಾದಾತೋಂತರಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತರಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಅನುಭವೇ ತನಧಿರ
teamwork ensure to run everything seamlessly. Finally, let us carry forward the essence of Dharohar, honoring our heritage, cherishing our traditions, and building a legacy for the future. Together, let us pledge to preserve and uphold the values that define us. Thank you all once again. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you very much. We are very thankful that you all supported us to make this show a huge hit. We firmly believe that you will continuously keep supporting us with your overwhelming love, the way you are doing for the past years, and we promise to deliver you the best we have. Thank you once again. Now, I would like to request you all to rise up for national anthem. ਇਹ ਬੰਨਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੱਜ ਗਈ sorry.